Hello everyone, I welcome you all to the Learn with Fun channel. Today we will discuss class 12th, chapter number 14 of chemistry, biomolecules. After studying this chapter, we will come to know, we will be able to explain the characteristics of the biomolecules like carbohydrates, proteins, and nucleic acid and hormones. Classify carbohydrates, proteins, nucleic acid, and vitamins on the basis of their structures. Explain the difference between DNA and RNA and describe the roles of biomolecules in biosystem. So let's start. It is a harmonious and synchronous progress of chemical reaction in body which leads to life. A living system grows, sustains, and reproduces itself. The most amazing thing about a living system is that it is composed of non-living atoms. मतलब कि बहुत ही बढ़िया बात है कि हम लोग जो जिससे बने वो एक नॉन लिविंग एटम है तो भी हम लोग लिविंग सिस्टम कहलाते हैं ओवरऑल हमारी जो बॉडी है वो the pursuit of knowledge of what goes on chemically within a living system falls on the domain of biochemistry मतलब कि जो पूरी हमारी सिस्टम लिविंग सिस्टम का मतलब कि जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं जिस ब्रांच में हम लोग को ये सब मालूम पड़ेगा living systems are made up of various complex biomolecules like carbohydrates proteins and nucleic acids lipids etc proteins and carbohydrates are the essential constituents of our food मतलब कि हम बात करें कि कोई भी फूड खा रहे हैं हम लोग कोई कुछ भी चीज खा रहे हैं तो उसमें ज्यादातर फूड या फूड में प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं these biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of life process मतलब कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं मतलब रिएक्ट भी कर सकते हैं और पूरा एक हमको लाइफ प्रोसेस का जो हमको मेन पार्ट चाहिए ना तो ये बायोमोलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं In addition, some simple molecules like vitamins and minerals also play an important role in the function of organism. हमको पता है कि विटामिन की कमी हो तो भी हमारा मतलब बॉडी फंक्शन या कोई भी पार्ट हमारा वर्क करना मतलब कि वर्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सम ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स आर डिस्कस इन दिस यूनिट मतलब कि हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में Carbohydrates are primarily produced by plants and form a very large group of naturally occurring organic compounds. Some common examples of carbohydrates are cane sugar, glucose, starch, etc. Most of them have a general formula that is CxH2O CxH2O and were considered as a hydrates of carbon from where the name carbohydrates was derived. For example, the molecular formula of glucose C6H12O6 fits into its general formula C6H2O6 मतलब कि हमने जनरल फॉर्मूला क्या बोली है CxH2O और हम बात करें कि जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स है जिसके बारे में हम जानते हैं ग्लूकोज उसकी फॉर्मूला क्या है C6H12O6 तो हमारी फॉर्मूला में फिट बैठता है मतलब कि CxH2O में अगर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 6 रखे तो उसी प्रकार से आगे देखते हैं मतलब कि कोई कोई कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूला में फिट भी नहीं बैठते पर जनरली ये मतलब कि पाया जाता है कि ये फॉर्मूला में फिट बैठ जाते हैं कई सारे बट ऑल द कंपाउंड्स व्हिच फिट इनटू दिस फॉर्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट्स और जो मतलब कि सभी कंपाउंड्स जो कि इस फॉर्मूला में फिट होते हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं कह सकते फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH मतलब कि बात करें कि एसिटिक एसिड का तो हमको पता है कि वो एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो भी ये फॉर्मूला में मतलब कि फिट होता है मतलब कि मान लो ये रहा C2H2O ट्वाइस हो वो एसिटिक एसिड है और वो कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है नहीं है Similarly, Ramenose C6H12O5 is a carbohydrate but does not fit मतलब कि ऐसा भी मतलब कि कंपाउंड हो सकते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है पर जो इस फॉर्मूला में फिट नहीं होते जैसे कि Ramenose C6H12O5 a large number of their reactions have shown that they contain specific functional group
chemically. The carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxyl aldehydes और ketones. मतलब कि बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि वो एक ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन है, और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, और ऐसे कंपाउंड जो कि ऐसे यूनिट बना सकते हैं, मतलब कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बना सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स बना सकते हो. सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स which are sweet in taste are also called sugars. और जो कार्बोहाइड्रेट जो मतलब कि टेस्ट में स्वीट है, हमको बहुत स्वीट्स तो वो खाना बहुत ही पसंद है, और उसे कहते हैं sugars. The most common sugar used in our homes is named as sucrose, whereas the sugar present in milk is known as lactose. अगर हम बात करें कि जो मिल्क में शुगर होता है उसे वो लेक्टोज होता है, और जो हमारे हाउसेज में जो हम लोग शुगर खाते हैं वो सुक्रोज होता है. Carbohydrates are also called saccharides. That is, saccharon means sugar. Saccharides भी कहते हैं. वो किससे नाम बना? ग्रीक वर्ड था एक सैकरोन, ये रहा. मतलब कि शुगर, सैकरोन का मीनिंग शुगर. कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड, मतलब कि अभी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस. मतलब कि अगर हम उसे हाइड्रोलाइज करें तो वो बिहेवियर क्या क्या शो करता है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को. फर्स्ट, monosaccharides are carbohydrates that cannot be hydrolyzed further to give simpler units of polyhydroxyaldehyde or ketone is called as monosaccharides. मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाइड्रोलाइज फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो और हमको यूनिट ना दे जो हमको चाहिए, मतलब कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन. सम कॉमन एग्जांपल्स आर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोस एक्सेट्रा. मतलब कि ये एग्जांपल्स है. ग्लूकोज ऐसा नहीं कर सकते, फ्रुक्टोज ऐसा नहीं कर सकते, और राइबोस ऐसा नहीं कर सकते. बाकी आगे कई एग्जांपल्स हो गए. ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में जानते हैं. Carbohydrates that yields 2 to 10 monosaccharides units on hydrolysis are called oligosaccharides. मतलब कि ये बेसिक टर्म ही दे दी हमने. डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स से न बोल के 2 to 10 के बीच में अगर कोई भी मोनोसेकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करे, कोई भी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसे हम ओवरऑल टर्म दे दिया है ओलिगोसैकेराइड्स. फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एक्सेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स. मतलब कि दो हो तो डाई बोल सकते हैं, तीन हो तो ट्राई बोल सकते हैं, फोर हो तो टेट्रा बोल सकते हैं. दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस. अमॉन्ग्स दिस द मोस्ट कॉमन are disaccharides. The two monosaccharides units obtained on hydrolysis of a disaccharides may be same or different. मतलब कि ऐसे बात कर सकते हैं कि जो भी मोनोमर्स यूनिट हमको मिले डाइसैकेराइड्स के हाइड्रोलिसिस में वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. एग्जांपल लेते हैं. वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रुक्टोज. मतलब कि बात करें अगर एक सुक्रोज का एग्जांपल ले तो अगर हम उससे हाइड्रोलाइज करें तो हमको दो मॉलिक्यूल्स, मतलब कि एक मॉलिक्यूल से हमको ग्लूकोज का मिलेगा और एक मॉलिक्यूल से हमको फ्रुक्टोज का मिलेगा. पर हम बात करें मेल्टोस की तो वो दो दो मॉलिक्यूल्स हमको ग्लूकोज का ही देगा. पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच यील्ड्स अ लार्जर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स. मतलब कि जो ज्यादा मतलब कि नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड दे उसे हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं. एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं. स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एक्सेट्रा. पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट. और हम बात करें तो पॉलीसेकेराइड मतलब कि स्वीट नहीं होते टेस्ट में, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स. और इसलिए हम उसे नॉन शुगर्स भी कहते हैं, क्योंकि स्वीट हो उसे हम शुगर कह रहे हैं तो इससे हम नॉन शुगर कहेंगे. द कार्बोहाइड्रेट्स में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, एक रिड्यूसिंग शुगर है और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर. वो किस प्रकार से? All those carbohydrates which reduce Fehling solution and Tollens reagent are referred to as reducing sugar. हम आगे भी हमने देखा हुआ भी है अल्डिहाइड चैप्टर्स में, अल्डिहाइड में कि फेलिंग क्या होता है और टोलेंस रिएजेंट मतलब फेलिंग टेस्ट एंड टोलेंस टेस्ट के बारे में. उसे हम जो भी रिड्यूस कर सके फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट को उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. और जो न कर सके ऑल मोनोसेकेराइड्स जो कि न कर सकते उसे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे. ऑल मोनोसेकेराइड्स वेदर अल्डोस और कीटोस आर रिड्यूसिंग शुगर्स.
हम बात करें कि जो कि मोनोसेकेराइड्स के बारे में बात करें, जो भी अल्डोस और कीटोस हो दोनों रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं हम उसे। Monosaccharides are further classified on the basis of the number of carbon atoms and the functional group present in them. हम बात करें कि मोनोसेकेराइड्स में भी फर्दर ग्रुपिंग होगी। जिस प्रकार के हमने अल्केन, अल्काइन, अल्कीन में ग्रुपिंग की थे, उसके बाद भी अल्केन में भी थोड़ा बहुत ग्रुपिंग हो सकती है। उसी प्रकार से यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स में भी डिफरेंट टाइप्स के ग्रुपिंग हो सकती है। Atoms and the functional group present in them. If a monosaccharide contains an aldehyde group, अगर एक ही अल्डिहाइड ग्रुप मतलब उसमें प्रेजेंट हो तो उसे हम अल्डोस कहते हैं, अल्डोस। एंड इफ इट कंटेन्स अ कीटो ग्रुप दैट इज नोन एज कीटोस, मतलब कि दोनों नाम ही अल्डिहाइड से अल्डोस मिला और हमको कीटोन से कीटोस मिला। Number of carbon atoms constituting the monosaccharides is also introduced in the name, as is evident from the example 14.1 टेबल। ये टेबल देख लेते हैं, उससे हमको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। 3 जनरल टर्म में ट्रायोस है, और अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट हो तो अल्डो ट्रायोस, और कीटोन प्रेजेंट हो तो कीटो ट्रायोस। उसी प्रकार से 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए यहाँ पे दिए हुए, एक बार रीड कर लेना। 7 का एक बार बता देता हूँ, हेप्टोस, अल्डोहेप्टोस एंड कीटोहेप्टोस। अभी हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज occurs freely in nature as well as in the combined form। मुझे ग्लूकोज फ्रीली भी मिल सकता है और कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकता है। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, मतलब कि हम लोग जो फल, मतलब कि फल खाते हैं, स्वीट फ्रूट्स मतलब कि जो फल मतलब मीठे हो, उसमें प्रेजेंट हो सकता है। एंड हनी में भी प्रेजेंट है। राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट, मतलब कि हम लोग जो कि ग्रेप्स खाते हैं उसमें भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। इट इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज, मतलब कि अभी प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं कि ग्लूकोज कैसे मिलेगा हमको, कैसे बनता है ये। फ्रॉम सुक्रोज केन शुगर, मतलब कि केन शुगर से मिलता है। हमको पता है कि हमने आगे बात की कि सुक्रोज को अगर फर्दर हम डिवाइड करें तो उसे वो हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज देगा और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज देगा। इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अगर हम बात करें कि सुक्रोज को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा दे, मतलब कि HCl, डाइल्यूट HCl के साथ या फिर H2SO4 के साथ, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी कौन से सॉल्यूशन में, अल्कोहलिक सॉल्यूशन में। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर ऑब्टेन इन इक्वल अमाउंट्स, हमने पहले ही बात की थी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेंगे हमको। ये रहा रिएक्शन, सुक्रोज की फॉर्मूला ये रही C12H22O11 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। H प्लस का हमको पता है कि एसिड रिप्रेजेंट करते हैं ये, C6H12O6 एंड C6H12O6, मतलब कि दोनों की ऐसे देखा जाए तो जनरल फॉर्मूला तो सेम है, पर ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स है। फ्रॉम स्टार्क, स्टार्क से कैसे मिलेगा? कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्क बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। हम बात करें कि स्टार्क से कैसे मिल सकता है, तो स्टार्क के साथ भी हम एसिड का यूज करते हैं, जैसे कि H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है कि 393 केल्विन होना चाहिए और 2 to 3 एटम्स होने चाहिए। मतलब कि अभी हम हाइड्रोलिसिस करें स्टार्क का तो हमें NC6H12O6 मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम देखेंगे किस प्रकार का होता है, आगे देखते हैं। ये एक जनरल फॉर्मूला उसका दिया हुआ है। ग्लूकोज इज एन अल्डोहेक्सोस एंड इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। अल्डोहेक्सोस का मतलब कि क्या है कि अल्डिहाइड ग्रुप 6, ये रहा कार्बन एटम उसमें 6 है, उससे हम अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे अल्डोहेक्सोस कहते हैं। मतलब कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एंड इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, उसे हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। It is the monomer of many of the larger carbohydrates, namely starch, cellulose. It is probably the most abundant organic compound on the earth. ये बहुत ही important बात है कि वो एक most abundant compound है अर्थ के सरफेस में पाया जाने वाला। It was assigned the structure given below on the basis of the following evidence, मतलब कि उसको structure ऐसा क्यों दिया है? पहला तो its molecular formula was found to be C6H12O6. Second, on prolonged heating with
HI मतलब कि हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें, वो हमें एन हेक्सेन देता है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसके बारे में जेई में और नीट में पूछा जा चुका है। suggesting that all the six carbon atoms are linked in a straight chain। इससे हमें मालूम हुआ कि जो भी कार्बन एटम्स है वो एक स्ट्रेट चेन में मिले। थर्ड, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन to form an oxime and adds a molecule of hydrogen cyanide to give a cyanohydrin। हम बात करें कि ग्लूकोज अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, वो एक ऑक्साइम बनाएगा। और अगर हम उसके साथ साइनाइड ऐड करें तो वो हमें साइनोहाइड्रिन देगा। ये रहा साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन। और हमें ये ऑक्साइम के वाला ये ऐसा स्ट्रक्चर हो तो ये ऑक्साइम कहता है। ऑक्साइम मतलब ऑक्साइम कहते हैं इसे। किसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कि ऑक्साइम किसके साथ बनाएगा, अगर हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करवा दे तो। और अगर हम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवा दे तो साइनोहाइड्रिन मिलेगा हमको। ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड on reaction with a mild oxidizing agent like bromine water। This indicates that the carbonyl group is present as an aldehyde group। मतलब कि बात करें कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है किसके साथ, मतलब कि ग्लूकोनिक एसिड में। फर्दर उसमें मतलब कि क्या ऐड करते हैं हम, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर। दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन अल्डिहाइड ग्रुप। मतलब कि जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एक ग्लूकोनिक एसिड मिलता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। इससे हमें मालूम होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो एक अल्डिहाइड ग्रुप है। अभी हम बात करते हैं एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। Acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentacetate which confirms the presence of 5OH group। मतलब कि ये बात बहुत ही काम की है। इसके मतलब कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये भी जेई में पूछा जा चुका है। Acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentacetate which confirms the presence of 5OH। अगर पेंटाएसिटेट मिले तो वो एक कंफर्म करता है कि इसमें 5OH ग्रुप मतलब कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। Since it exists as a stable compound, 5OH group should be attaching to a different carbon atoms। और हमें पता है कि अगर एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो वो एक अनस्टेबल है और वो कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइड ग्रुप में। ये हमने देखा हुआ भी है। इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि 5OH ग्रुप शुड बी अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम्स। ये रहा रिएक्शन, 5 एसीटेट पेंटा एसीटेट हमको मिला। 6 on addition sorry on oxidation with nitric acid glucose as well as gluconic acid both yields a dicarboxyl acid सैक्रिक एसिड। मतलब कि अगर हम बात करें कि उससे अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दे ग्लूकोज को तो हमें सैक्रिक एसिड मिलेगा। और हमको जो ग्लूकोनिक एसिड मिला था जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2 प्लस वाटर के साथ जो मिला था, अगर ग्लूकोनिक एसिड को भी हम ऑक्सीडाइज करवा दे अपने किसके प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें सैकराइड मिलता है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक OH ग्रुप इन ग्लूकोज। मतलब कि ये एक इंडिकेट करता है कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। द एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप वाज गिवन बाय फिशर आफ्टर स्टडिंग मेनी अदर प्रॉपर्टीज। मतलब कि ये जो हमको पूरा स्ट्रक्चर दिया है वो एक मतलब कि हमको फिशर ने दिया है। इट्स कॉन्फ़िगरेशन साइंटिस्ट फिशर, its configuration is correctly represented as 1। ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। सो ग्लूकोनिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज 2 और ये ग्लूकोनिक एसिड की कॉन्फ़िगरेशन है। और ये एक सैकरिक एसिड की हमको कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। हमें इसको मतलब कि ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर को हमें बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना होता है। अगर हम इसकी बात करें कि अगर हम लोग माने कि राइट साइड 3 OH ग्रुप है, मतलब कि ऐसे देखा जाए तो
चार, हमको ये चार कार्बन का मतलब याद रखना होता है, क्योंकि चार कार्बन में ही डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते रहते हैं और कंपाउंड चेंज होता रहता है। तो हम उसे यहाँ पे 1 2 1 1, अगर हमको राइट साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट मिले तो हम उसे 1 के साथ इंडिकेट कर सकते हैं, और अगर लेफ्ट में मिले तो हम उसे 2 के साथ इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हमको ये मेमोराइज करने में इजी रहता है। मतलब कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि CHO, बाद में OH 1 2, OH 1, OH H एंड CH2OH, मतलब कि 1 2 1 1। ग्लूकोनिक एसिड और ये हमारे ग्लूकोज में स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही फर्क है, यहाँ पे जो अल्डिहाइड ग्रुप था वो हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है कौन से ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और सेकेरिक एसिड की बात करें तो ये जो मतलब कि यहाँ पे जो CH2OH था, अल्कोहलिक ग्रुप, वो भी एक अभी कन्वर्ट हो चुका है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे।